Hello and a warm welcome to all the investors and information seekers from capital market to this interaction with the management of Shivalik Power Control Limited. I am Naveen Tekwani, President, Corporate Capital Ventures, who's acting as a lead manager to this IPO. Before initiating this interaction, I would also like to suggest and declare that this interaction should not be in any ways construed as an investment advice or inviting and soliciting any kind of subscription to the upcoming IPO of the company. This interaction is purely for educational purpose and for dissemination of information of the business model of the company. Corporate Capital Venture is the lead manager to the IPO. We are not registered with SEBI as an investment advisor or portfolio manager. We are registered as a Category 1 merchant banker. And so I invite all of you for this interaction and taking inputs for your prudent investment journey. With me today, we have the Director of Shivalik Power Controls, Amit Kanwar Jindal, and we also have Mr. Love Mangla, who is also part of the management of the organization. Welcome both of you to this wonderful interaction for the investor fraternity. Yes, such a wonderful platform where we are telling more about our company. Thanks, Amitji. Shivalik Power Control Limited is an ISO certified low tension and high tension electric panel manufacturer with 20 years of operating history. The company specializes in technologically advanced designs and offers diversified range of electric panels. They are one of the very few panel manufacturers which are pioneering non-welded panel technology, boosting energy efficiency and reducing wastage. Amitji, why don't you tell a bit more about the company and its beautiful products, how they are helping the power sector at large? As Shivalik, we ensure that wherever electricity is used, it's being safe and reliable. As Shivalik, we are making LT and HT panels. Panels is the main core of electricity distribution. Wherever you are using electricity, it must be came from a panel. Right now, we are doing this online call. This is also behind there. Wherever you use electricity, behind everything, there is a panel. And we started Shivalik in year 2004 with a small area of 400 square feet. Today, it built its own factory in industrial town in IMT Faridabad, 1.25 lakh square feet area. And our factory is a testimonial and a studio. If you have any time, you can come to our factory and visit it. Why don't you just introduce the audience about yourself, your qualifications, and who are all there after running this business? I did my BTech in year 2000. In 2004, I started this company. I am a first generation entrepreneur. I started with a 50,000 rupees, this company, in year 2004. Along with me, my wife, Dr. Sapna Jindal, is there, who looked mainly production, and she is looking it better than me. Along with me, CA Love Mangla ji, who is our Chief Growth Officer. Along with it, Mr. Ravinder Chaudhary, who is our Chief Marketing Officer. And we have two independent directors, Mr. Surojit Bose and Mr. Dheeraj Mangla. And we have Tarun Agarwal, non-independent director. And CA, we have CS Neha Sandyal and CFO Mr. Tarun Joshi. And we have many more engineers, approx 30, to deliver these panels. Wonderful. CA Love Mangla ji, why don't you introduce yourself in a couple of lines? Thank you. Myself, sir, Love Mangla. I'm a chartered accountant in the field of financing and advising in strategy and planning of corporates. I'm working with Shivalik in planning the strategies, growth strategies mainly. Welcome to both of you. As we all know, India power sector is undergoing a great transformation. From a power deficit country, we are moving towards a power surplus through renewable energy reforms and other power reforms. मुझे बताइए how Shivalik will play a significant role in this growth opportunity. Naveen
जी, you see that whatever the methods of power generation, पावर कैसे भी जनरेट हो, चाहे सोलर से हो, चाहे विंड से हो, चाहे न्यूक्लियर से हो, उसका जो ट्रांसमिशन का मेथड है वो इलेक्ट्रिकल पैनल्स ही है। और उसका यूसेज भी कैसा भी हो, चाहे वो ईवी चार्जेस में लग रही हो, या डाटा सेंटर में लग रहा हो, या इंडस्ट्रीज में लग रहा हो, या मैन्युफैक्चरिंग हब में लग रहा हो, तो बीच का जो कोर डिस्ट्रीब्यूशन है वो शिवालिक बनाता है। और हम बड़े प्राउड से कहते हैं कि शिवालिक जो पैनल्स बनाता है वो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आईईसी 61439 पार्ट 1 एंड 2 से बनाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है। बहुत बढ़िया। जो आप ये बेहतरीन पैनल्स बनाते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, तो थोड़ा सा हमें बताइए आपके स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के बारे में, और आज जो आपकी स्टोरेज कैपेबिलिटीज हैं उसको कैसे फ्यूचर में कितना एक्सपांड किया जा सकता है। हमारा जो प्लांट है वो आईएमटी फरीदाबाद में है। 1.25 लाख स्क्वायर फीट में ये प्लांट है। और सारा का सारा ऑपरेशंस हम डिजाइन से, इंजीनियरिंग से, मैन्युफैक्चरिंग से, पाउडर कोटिंग सब इन हाउस करते हैं हम। सारे के सारे ऑपरेशंस हमारे पास वर्ल्ड की टॉप क्लास मशीन है। जैसे ट्रूम्फ की हम बात करें, वो जर्मन मशीन है। बेंडिंग के लिए अरमैक्सन है, अमेडा है, लैग है। बस बार के लिए बहुत ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। तो इन सब से हम जो पैनल बनाते हैं वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का है। और हमारा 4 कंपनियों से टाई अप है। जैसे हम एलएनटी की बात करें तो हम टीआई पैनल बनाते हैं, श्नाइडर का हम प्रिज्मा पैनल बनाते हैं, और सीमेंस का हम सी पैन और सी पैन एलाइट बनाते हैं, और एपकॉस टीडीके के हम एचवी कैपेसिटर पैनल्स बनाते हैं। आज का जो आपका कैपेसिटी है वो कितना यूटिलाइज्ड है, और हम इसको किस लेवल तक ले जा सकते हैं। अभी हम जो कैपेसिटी हमारी यूटिलाइज है वो अप्रोक्सीमेटली 50% के करीब है। हमारा प्लांट काफी बड़ा है, और हमारा जो अभी यूटिलाइजेशन है वो 50% है। और अगले आने वाले 2 सालों में हम 100% यूटिलाइजेशन देख रहे हैं। मुझे बताइए कि शिवालिक पावर कंट्रोल्स दूसरे पैनल मैन्युफैक्चरर से अलग कैसे है। हमारे पास वर्ल्ड की बेहतरीन मशीनें, और जो मेरी टीम है, हम बहुत इंजीनियरिंग कंपनी है। हम हमारे पास जो डिजाइन टीम है, जो टेस्टिंग टीम है, वो बहुत ही नायाब लोग हैं। मतलब, और कई लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं, और आज 14-15 साल हो गए एज ए जीईटी आए थे। तो हमारी डिजाइन कैपेबिलिटीज, हमारी मशीनिंग कैपेबिलिटीज, हमारा जैसे नॉन वेल्डेड पैनल हम बनाते हैं, कोई भी वेल्डिंग नहीं करते हैं उसमें, सब कुछ नट बोल्ट्स पे है। और ये 4 टाई अप आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही रिगरस प्लांट विजिट्स के बाद, बहुत चेक्स के बाद, आईएसओ में भी हमने 9001 भी ले रखा है, 14,001 भी है, 45,001 भी है, 50,001 भी है। तो क्वालिटी के लिए हम बहुत डेडिकेटेड हैं। और हमारे, अगर आप कस्टमर्स भी देखोगे, तो हर सेगमेंट के टॉप नॉच कस्टमर हमारे पास हैं। जैसे हम स्टील की बात करें तो हम टाटा को सप्लाई कर रहे हैं, जेएसपीएल को, जेएसडब्ल्यू को, क्रेस्ट स्टील को, ये स्टील के कस्टमर है। हमारे पेपर की बात करेंगे तो जेके पेपर, सेंचुरी पेपर, नैनी पेपर, और कई कस्टमर ऐसे हैं जो पिछले 20 सालों से, 2 डिकेड से कंपनी के साथ है। मतलब, और आप शुगर की बात करेंगे तो डालमिया शुगर, डीसीएम शुगर, त्रिवेणी शुगर, ये सब हमारे रिपीट कस्टमर है। हमारा पहला ऑर्डर भी हमें त्रिवेणी शुगर ने 4 लाख रुपए का दिया था मात्र। बस डक्ट का एक पहला ऑर्डर था हमारा 2004 का। तो हमारे रिपीटेड कस्टमर है। और हमारे बिजनेस की अगर बात करें तो 50% बिजनेस हमारा रिपीटेड है, और 50% न्यू है। जैसे डाटा सेंटर की बात करें तो एचपी का काम करते हैं हम, एयरटेल का काम करते हैं। आपने अपने कस्टमर्स के कुछ नाम लिए, एंड आई बिलीव जो आपकी क्वालिटी है वो दिखाती है कि कैसे टॉप ब्रांड्स इन द कंट्री आपके ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं। मैं ये सवाल सीए लव से पूछना चाहूंगा। आप मुझे बताएं, इतने बड़े जायंट्स इन द कंट्री आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ओईएम्स आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा और बताएं, और कौन से नाम हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और क्यों वो आपको ट्रस्ट करते हैं। सर वी टॉक अबाउट द ओईएम टायर्स। तो सर आप समझिएगा कि जो ये ओईएम्स हैं लाइक श्नाइडर, सीमेंस एंड एलएनटी, दे themselves have cutthroat competition among them. Still जनरली क्या होता है, ये सेम एंटिटीज के साथ ऑल दे ऑल डोंट डू पार्टनरशिप, बट दे ऑल हैव पार्टनरशिप विद अस बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच वी हैव एंड द क्वालिटी वी आर सर्विंग। क्योंकि इन्हें अपना प्रोडक्ट बनवाना है तो इन्हें चाहिए कि जो बेस्ट क्वालिटी दे रहा हो। तो अगर हमारे साथ सबने टाइप किया है तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी दे रहे हैं कि इन्हें, मतलब सामने वाली कॉल है कि हाँ भाई इनके साथ तो टाइप करना होगा।
तो ये कंफर्ट उन्हें मिलता है कि बेस्ट क्वालिटी का कंफर्ट दे रहे हैं हम, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इनफ है कि हम बड़े ऑर्डर्स भी डिलीवर कर सकते हैं। आपका आने वाला आईपीओ 64.32 करोड़ का है, जिसमें 64,32,000 इक्विटी शेयर्स हैं। ये आईपीओ आपका 24 जून को खुल रहा है, 24 जून 2024, और आपका आईपीओ 26 जून 2024 को आपका आईपीओ बंद होगा। इसका प्राइस बैंड होगा 95 to 100, लॉट साइज होगा 1200 इक्विटी शेयर्स। ये आईपीओ जो है वो दिसंबर 2023 के नंबर्स तक आ रहा है। मुझे बताएं 2023 दिसंबर के नंबर्स क्या रहे जिसके बेसिस पर हम ये आईपीओ करने जा रहे हैं। सर स्टब पीरियड 9 मंथ्स में हमने 9 मंथ्स का जो हमारा टर्नओवर है ना वो 64 CR का है, जिसमें हमने 7.6 CR का हमारा पैट है। एंड दैट्स इट। आपका आने वाले समय का ऑर्डर बुक कितना बड़ा है? जनरली सर मैं आपको एक छोटी सी और क्लैरिटी देता हूँ, जो हमारा सेकंड हाफ होता है, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर होता है, वो कंपेरेटिवली मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ होता है। तो जो फाइनेंशियल एंड ईयर एंड के नंबर होंगे वो काफी बेटर होंगे हमारे जो कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के होंगे। ऑर्डर बुक्स की बात करें तो वी हैव करंट ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 60 CR which we have to deliver in next 4-5 months. Apart from this, we have around orders of 200 in pipeline which are under discussion, and for them we have submitted the bids. अमित जी ने अपने स्पीच में बताया कि डेटा सेंटर्स का काम कर रहे हैं। सीएलव, आप बताएं कि आप डेटा सेंटर्स की तरफ जा रहे हैं और कुछ आरबीआई से भी आपको डेटा सेंटर्स का ऑर्डर मिला हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर आरबीआई डाटा सेंटर कहीं ना कहीं जो हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ द पैनल्स है, तो उस वजह से हमारे को ये आरबीआई डाटा सेंटर का ऑर्डर मिला है। कहीं ना कहीं इंडिया का मोस्ट रेपुटेड एंटिटी है आरबीआई, और जहां भी सर टेक्निकली मोस्ट प्रिसाइज या हाईली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं शिवालिक को प्रेफर किया जाता है। तो इसी वजह से हमारे को ये ऑर्डर मिला है। ठीक है, एचपी के थ्रू ही ऑर्डर मिला है हमारे को। और इस क्योंकि ये आज तक का हमारा सबसे बड़े साइज का ऑर्डर है 28 CR का टिल डेट, तो हमारे पास सेम साइज की इंक्वायरीज काफी हैं डाटा सेंटर्स की, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंडिया के सबसे बड़े डाटा सेंटर का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उस साइज की इंक्वायरीज भी काफी, और मार्केट में डाटा सेंटर की इंक्वायरीज का फ्लो काफी। तो वी कैन से कि हम आज के टाइम में डाटा सेंटर्स में पैनल के लिए प्रेफर्ड वेंडर है। 64.5 करोड़ का लगभग आईपीओ है। मुझे बताइए कि आने वाला आईपीओ आपके कंपनी के प्लान्ड ग्रोथ में क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव करने में हेल्प करेगा? सर मेजरली जो फंड है वो अराउंड 50% वी आर टेकिंग एज अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और इसके अलावा अराउंड 7.5 CR वी आर टेकिंग फॉर कैपेक्स। कैपेक्स में सर हम जो मेजरली कर रहे हैं, तो दो पार्ट में मैं अपने कैपेक्स को बाइफरकेट करता हूँ। वन इज फॉर मशीनिंग एंड वन इज फॉर स्पेस, क्योंकि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसे। वन इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस, एंड वन इज मैनुअल असेंबली प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो कैपेक्स है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए, जो हम मशीन्स परचेज कर रहे हैं वो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए है, जिससे ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल हमारी काफी इंप्रूव होगी, वर्किंग कैपिटल साइकिल। दूसरा जो मैनुअल असेंबली का होता है, तो उसके लिए क्या होता है, स्पेस की जरूरत होती है, तो हम अपनी टेरेस पे शेडिंग कर रहे हैं, जिससे मेरा अराउंड 50% से स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, तो वी कैन प्रोड्यूस मच मोर प्रोडक्ट। आपके डेक में हम देख सकते हैं कि आपके एक्सपोर्ट्स में भी काफी सारी प्रेजेंस रही है। पोस्ट आईपीओ आप कौन से कंट्रीज में और एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथन कर पाएंगे और कितना मार्केट और कवर कर पाएंगे? सर एक्सपोर्ट के लिए हम डेडिकेटेडली अफ्रीकन कंट्रीज को अप्रोच कर रहे हैं, वहां पे काफी इंक्वायरीज भी हैं हमारे पास, और वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड सम गुड प्रोजेक्ट्स इन दोज कंट्रीज। मैं सारे ऑडियंस को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन इज फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस। वी आर नॉट सॉलिसिटिंग और इनवाइटिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. Investors would take their own prudent calls while investing in the upcoming IPO, and this interaction is purely for dissemination of knowledge about the business model and the business actions of the company. Moving back to the questions,
what kind of value unlocking, CLF, do you see from the growth expansion which is there in the next 2 to 3 years of the business? What kind of milestones the company will be able to achieve? नवीन जी, इस पे थोड़ा सा मैं आपसे एक्स्ट्रा टाइम एक्सपेक्ट करूंगा Sure. कि मैं आपको बताता हूँ शिवालिक चल कैसे रही है और कैसे चल पाएगी, कि ग्रोथ आनी कहाँ से। कहीं ना कहीं सर, जो हम पैनल्स दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, कहीं ना कहीं वो जो क्वालिटी है वो हमारे पास रेगुलर इंक्वायरीज आ रही है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा कि किस तरह की इंक्वायरीज हमारे पास आती हैं और किस तरह से आती हैं। कि आप समझिएगा कि एक ऑर्डर हमारे पास आया जेएमसी से, इट्स कल्पतरु ग्रुप कंपनी, जेएमसी प्रोजेक्ट्स। तो हमारा किसी भी तरह का उनके साथ कोई एग्रीमेंट या कोई टाई अप या किसी भी तरह का डिस्कशन ही नहीं था, और दे पीपल अप्रोच्ड अस केवल इस वजह से कि मंगोलिया में एक रिफाइनरी लगनी थी, ठीक है, जहां पे जो टेम्परेचर रेंज होता है वो -40 to 5 डिग्री होता है। तो वहां पे क्योंकि मोर इंजीनियरिंग चाहिए की रिक्वायरमेंट थी या मोर टेक्निकल एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट थी, तो दो पीपल अप्रोच, मतलब ढूंढते वो हमारे को आए कि ये पैनल हमें आपसे बनवाना है, क्योंकि उन्हें पता था ये क्वालिटी कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे अगर हम क्वालिटी की बात करें तो दिल्ली में G20 का सबमिट होता हुआ, तो वहां पे हमने पहले पैनल सप्लाई किए, हमारे को अप्रोच किया गया वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली G20 में वो किसी भी तरह की इंटरप्शन एक्सपेक्ट नहीं करी जा सकती, ठीक है ना। तो क्वालिटी जिस तरह की हम दे रहे हैं, तो हमारे को लगता है कि ग्रोथ हमारे पास काफी आनी है, ठीक है ना। मार्केट में बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है जिस तरह से पावर सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, ठीक है। और नई जो इंडस्ट्री है, चाहे वो हम डाटा सेंटर कह लें या ईवी का इंफ्रा कह लें, तो वहां से इतना डिमांड है और इतनी इस तरह की ऑर्डर फ्लो है कि ये ग्रोथ बहुत फास्ट हो सकती है। और ग्रोथ फास्ट होने के पीछे जो अभी तक हमारे लिए चैलेंज था, वो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना। क्योंकि होता है कि जैसे ही हम ऑर्डर साइज अपना, हमारे को अगर अपनी ग्रोथ फास्ट करनी है तो हमारे को फास्ट बड़े साइज के ऑर्डर पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और जब भी मैं बड़े साइज के ऑर्डर पे शिफ्ट होता हूँ तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उस शॉर्ट टर्म के लिए काफी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस फंड्स के इन्फ्यूजन से हम मल्टीपल टाइम्स में ग्रो कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये टाइम एप्ट है मार्केट में ग्रोथ के लिए, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी अवेलेबल है ऑलरेडी, मतलब वी आर यूटिलाइजिंग अराउंड 45-50% कैपेसिटी, ठीक है। और माइनर हम कैपेक्स करके उस कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं। और मार्केट में ऑर्डर इनफ्लो बहुत ज्यादा है, मतलब पावर सेक्टर में आप समझिए ना, जब पावर जनरेट हो रही होती है, जितने परसेंटेज से पावर सेक्टर की ग्रोथ होनी है, उसकी डबल परसेंटेज से सर पैनल इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी है। क्योंकि पावर जनरेशन पे भी पैनल लगना है और पावर यूटिलाइजेशन में भी पैनल लगना है, तो पैनल तो दोनों जगह लगना है। तो जितनी जनरेशन पे ग्रोथ होगी उसकी डबल ग्रोथ होगी, तो पावर जनरेशन के जो टारगेट्स आ रहे हैं वो डबल के आ रहे हैं नेक्स्ट 3 इयर्स, तो पैनल इंडस्ट्री तो उससे भी ज्यादा फास्ट ग्रो करेगी। Great. Moving on to my last question, अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका शिवालिक को लेकर क्या विजन है इस कंपनी के ग्रोथ को लेकर? हमें तो फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है, और लास्ट 3 साल में भी अगर हम देखेंगे, हमने अपनी कंपनी को डबल किया है। लास्ट जो 3 साल लगे, हम चाहते हैं आने वाले टाइम में वो जो हमें डबल करने में, हमने इस साल भी एक माइलस्टोन अचीव किया है। तो हम चाहते हैं आने वाले समय में 1.5 साल में हम जहां पर ये हमने माइलस्टोन अचीव किया है, उससे डबल आने वाले 1.5 साल में करें। और पैनल्स की इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना कैपेक्स आ रहा है, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, बहुत हर जगह चाहिए पैनल, मतलब कहीं पर भी। अभी हमने त्रिची एयरपोर्ट किया है, हर जगह पैनल्स की रिक्वायरमेंट हर जगह है। So let me tell the audience that once again, this interaction is purely for educational or informational purpose, and in no means this should be construed as an invitation or solicit to invest in an upcoming IPO. As usual, investors will take their prudent calls for investing. And before we conclude, I will request the management once again, Amit Jiddalji and Mr. CL Mangla, to give their parting remarks, their closing statements. सर मैं यही कहूंगा इन्वेस्टर्स के लिए, हमने 20 साल में अपनी जड़ें मजबूत की है सर, तो पत्ते तो हरे ही आने हैं। और हमारे रिपीटेड कस्टमर्स, बड़े बड़े रिपीटेड कस्टमर्स हैं, तो हम इन्वेस्टर का तो हमें ख्याल रखना ही है मिलके अब। और मतलब आने वाला वक्त इलेक्ट्रिकल सेगमेंट के लिए, पावर के लिए बहुत बूमिंग है। आप देखो ना, हम फ्यूल को रिप्लेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब हम डीजल और पेट्रोल को आने वाले समय में रिप्लेस कर रहे हैं। हम नेट जीरो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सब सोलर पे जा रहे हैं, हम विंड पावर पे जा रहे हैं। हर चीज के लिए जहां भी सस्टेनेबिलिटी है, नेट जीरो है, इन सब में पैनल्स की ह्यूज रिक्वायरमेंट है, ह्यूज।
Thank you from my side. Thank you, Naveen. Thank you. Thanks, sir. Thanks, sir. Well, these were the wonderful closing remarks by the management of Shivalik Power Control Limited. Let me remind you that the issue opens on 24th of June 2024 and issue closes on 26th of June 2024. The price band is rupees 95 to 100. Lot size is 1200 equity shares, which brings the issue size to 64.32 crores and a total of 64,32,000 equity shares. Corporate Capital Ventures is the book running lead manager, and this issue is coming on NSE Emerge. And with this is Naveen Tekwani, President Business, Corporate Capital Ventures, signing off. Hoping to see you again with yet another powerful presentation from the Corporate Capital Ventures platform. Thank you so much for listening to us. Thank you.